वो उनका मैं वेलकम कराऊंगा हमारे सुनील शर्मा जी से। सुनील जी, आप जरा हमारे नए फैकल्टी जो हैं दूसरे सेशन के, उसको आप जरा वेलकम कीजिए। हो जा रहा है सर मेरा? हेलो, या आ रहा है, सुनील बोलिए। आ रहा आ रहा है सुनील भाई। आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है वो अपने हेल्थ के रिलेटेड आस्था और अंधविश्वास से परे है। योग एक विज्ञान है, एक ऐसी प्रैक्टिकल साइंस है जो हमारे जीवन को इसका बहुत तुरंत ही असर करती है। योग कहता है कि शरीर और मन का नाश नहीं करना है, बल्कि इसका रूपांतर करना है। इस रूपांतर के लिए बदलाव जरूरी है। यदि आपको लगता है कि आप कोई अपनी आदत आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो चिंता मत करो, योग को इसमें जोड़ दो और आप न चाहेंगे तो भी आपको इसका परिणाम मिलेगा, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। So friends, it's time to welcome our yoga guru, Mr. Shrikant Keshri Sagar. He has a corporate background of 20 years in the field of logistics and supply chain. He chose to pursue interest and passion in yoga and spirituality since 2010. He has done masters in Yoga Shastra and pursuing research, and also is a PhD scholar in yoga. His main aim is to promote yoga globally, recognized approach to health and well-being. He has conducted more than 250 sessions at different organizations and institutes, and is connected with 5,000 plus audience. So friends, every introduction is very small in front of Mr. Shrikant K.C. Sagar. So please welcome Shri Shrikant ji. Thank you, Sunil ji. Welcome, Thank sir. you so much. Yeah. Could you give me हाँ सर, अतुल भाई, हाँ इनको बोलिए। होस्ट कर दो, इनको होस्ट कर दो। yeah, so that I can share the screens with you. Yeah. हाँ, आप उसके शेयर स्क्रीन कर सकते हैं सर। यस सर, आ गया सर। हाँ जी. यस सर, थैंक यू। So, Sunil ji and the entire fraternity of photographers, like Ian said, make a picture, and I think I was there for the session, so first time. So thank you. इनसे की जो तस्वीरें थी बहुत, I mean I enjoyed the various pictures taken by him. Okay, so just to give a background, हम लोग अभी we are in a very delicately balanced state for on the health front, और इसीलिए we thought that okay, the most challenging aspect of the entire thing is to make our immune system better. हमको ये चाहिए, we must ensure that we are doing a proper one second. Yeah. Right. So so what are those techniques? See, yoga, जैसे सुनील जी ने बताया कि it's a very long process. But for beginners, what are those simple things in these times that we should do? कौन सी ऐसी वो छोटी 4-5 चीजें हैं जिसको करने से हमें फायदा होगा, और इसी के लिए this is the background of this session. I would request all of you to just participate wholeheartedly. उसको देखिए. I would use both the slides and I will demonstrate it also. हम लोग साथ में भी करेंगे सारी चीजें, और ये सारी recording आपको मिलेगी. You will have all the recordings of the session. So कभी भी you can always refer back to these sessions once again. Okay. Let me give you just to मतलब ये कोई not trying to tell, just to tell you that this is the home setup. कभी कभार थोड़ा सा there may be a little issues in terms of bandwidth or something, so that we must just bear with this thing. एक छोटा सा we know that योग या कोई आसन या exercise करते हैं, थोड़ा सा our stomach must be light. We must be थोड़ा सा पेट हल्का होना चाहिए. तो क्या है उसका thumb rule? Thumb rule is very simple. चाय कॉफी यदि लेते हैं तो 30 मिनट का हम keep a gap.
ब्रेकफास्ट के बाद में एक 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए, और लंच के बाद में, अभी जैसे 5 बजे है आपका, 2 बजे आपका लंच हुआ है, तो 5 बजे आप प्राणायाम कर सकते हैं या ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हैं। दिस अ स्मॉल टिप, बिकॉज ये हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर दैट। ओके, सो बात हो रही थी अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, okay? और सारी जो बीमार मतलब सारा जो अटैक हो रहा है ये पूरे वायरस का, दैट इज ऑन द लंग्स, दैट इज ऑन द ब्रीदिंग, दैट इज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, हाउ वी शुड स्ट्रेंथन दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इज आवर टॉपिक, राइट? कौन सी प्रैक्टिसेस है दिस वी शुड डू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ वेरी डेलिकेट सिस्टम, राइट? बचपन से लेके, मतलब जन्म से लेके आखिरी सांस तक हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या सो ये हमारा नेचुरल वेंटिलेटर है। सो ये वेंटिलेटर को हम थोड़ा सक्षम रखे, थोड़ा वी कीप इट active, we keep it energized, so that no, we will not have any issues and problems. Okay, come to the immune part of it. Breathing के कारण immune system कैसे बढ़ेगी, that is our topic. तो immune system क्या है? Immune system is nothing but our army, our हमारी जो फौज है, प्रतिकार शक्ति जो है, जो वायरसेस से हमें लड़ने की it makes us the fights the enemy, so that is our system, right? So how so इसके बारे में हम लोग will not get into too much of detail, but अपने को अपने immune system strengthen करना है। तो immune system कैसे strengthen होती है? When we are, our lungs are providing oxygen to the entire system well, right? जब हमारी lungs सक्षम है and तब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बराबर हो रहा है, एंड मोर इम्पोर्टेंट इज हमारा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड या टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं, तभी इट इज पॉसिबल दैट दिस इज डन प्रॉपरली, राइट? तो यदि ब्रीदिंग ही करते रहे, ऑक्सीजन ही लेते रहे और अपना कचरा बाहर नहीं फेंके, तो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। सो दोनों चीजें बैलेंस होना आवश्यक है। You have to take in oxygen properly, breathing बराबर होनी चाहिए, और exhalation भी ठीक होना चाहिए, right? That is very important. Okay, so just to put this whole subject and topic into perspective, देखिए थोड़ा सा हम ध्यान दें कि हमारे ब्रेन को 25% ऑक्सीजन की आवश्यकता है, right? Our brain consumes 25 units of oxygen out of say 100 units. इसका मतलब क्या है? ब्रेन इज सच अ स्मॉल ऑर्गन, बट उसको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, राइट? वाटर 25% ऑक्सीजन ब्रेन ही अकेले कंज्यूम कर लेता है, बाकी के 72 ऑर्गन से 15 सिस्टम से उनके लिए जो बचा कुचा है वो दिया जा सकता है, राइट? सेकेंड पार्ट इज आवर न्यूरॉन्स विच आर देयर, राइट? दे आर कंज्यूमिंग, or they rather constitute 80% of the brain's energy. Neurons क्या है? What are the neurons? Neurons are the ones which are carrying our signals from the body to the brain and from brain to the body. So that is right. तो हमको क्या करना चाहिए? We have to reduce the traffic on the neurons. अभी हम देख रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में बाहर ट्रैफिक कम है, तो हिमालय बहुत अच्छा सा दिख रहा है ना, एंड वी आर फ्लेमिंगोस दिख रहे हैं, पोल्यूशन कम हो गया है, राइट? व्हाट इज दिस इंडिकेट? दैट जितना अच्छा हमने इसको किया, राइट, जितने न्यूरॉन्स में ट्रैफिक कम हुआ उतना ही ब्रेन संतुलित रहेगा। तो हमको क्या करना है? व्हाट इज द मैसेज आउट ऑफ दिस? द मैसेज इज वी शुड कीप आवर माइंड कूल एंड काम। So, दो बातों का हम इसमें ध्यान दें। One is that we must improve oxygenation, right? जो lungs के द्वारा हो, और दूसरा हम अपना दिमाग ठंडा रखें, right? We must keep our mind cool, चाहे वो फोटोग्राफी है या चाहे कोई भी काम हो, right? Our mind is
the entire things, सब कुछ अपने मन में है, right? वो बीमारी भी हम लोग कहते हैं योग मनाचा रोग मनाचा, योग भी मन का है और रोग भी मन में ही आता है, right? हम 10 बार 10 चीज देखेंगे तो वो उसकी तकलीफ, right? We'll go into the exercises, practices, बहुत जरूरी है. And the first exercise that we'll do is breathe in, breathe out, hands in, hands out. तो क्या करना है अपने को, मैं एक बार करके दिखाऊंगा. अपने लंग्स जो है, अपने फेफड़े जो है, दे आर एक्सपैंडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो हमको हमारे लंग्स का एक्सपेंशन, हमारे लंग्स की इलास्टिसिटी, हमारे लंग्स की क्षमता बढ़ाना है, राइट? सो लेट अस डू दैट एक्सरसाइज एंड देन लेट अस ऑल, हम लोग चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं या खड़े होकर भी कर सकते हैं. या जस्ट लेट्स सी दिस एक्सरसाइज. I will do it for you and right. क्या करना है अपने को, अपने लंग्स को हमको हॉरिजॉन्टली उसको एक्सपैंड करना है. कैसे करेंगे देखिए, मैं एक बार करके बताता हूँ, then we all can do it. हाथ सामने रखिए, श्वास लीजिए, ब्रीद इन, 1 2 3 4, धीरे धीरे श्वास छोड़िए, 1 2 3 4, राइट? हमने लंग्स को, we have to expand our lungs because lungs can expand in a horizontal direction, it can expand in vertical direction and it can expand sideways, front and back also, right? So तीनों जगह तो अपने लंग्स को हमने ठीक प्रकार से, या एक बलून होता है देखिए हम लोग यूज करते हैं, तो यूज करने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको खींचते हैं, राइट? वी मेक इट अ लिटिल थिक. चलो एक बार और करते हैं, आपको अभी यू नो द टेक्निक. सो हैंड्स इन फ्रंट, अच्छी लंबी गहरी श्वास लीजिए, जितना हम ऑक्सीजन ले सकते हैं हमारे सिस्टम में उतना लीजिए, और जितना लंग्स को पूरा भरना है और लंग्स को पूरा हमको खाली करना है. वी हैव टू फिल इन द लंग्स फुली एंड वी हैव टू एम्प्टी द लंग्स कंप्लीटली. ट्राई एंड डू इट. ठीक है, एक सेटिंग में नहीं आएगा, बट हमको कॉन्सेप्ट यदि समझ में आएगा तो वी कैन इंप्रूव ऑन दिस प्रैक्टिस इमीडिएट. चलिए देखिए फिर से एक बार श्वास लीजिए, ब्रीद इन, 1 2 3 4, श्वास छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए, 1 2 3 4. एक बार और करते हैं, 1 more time. और हमको अभी पता चला कि हमको क्या करना है, हाथ बाजू में लेना है और हाथ नजदीक लाना है. टेक आवर हैंड्स आउट and get our hands together. Now, देखिए what we were telling you कि mind has to be involved. We said brain is the central processor. So हमको क्या करना चाहिए? What we should do? We should say that yes, that I am taking in oxygen and I am removing carbon dioxide from my body. I am sending toxins away from my body. Right? हम जो भी काम करते हैं वो मन उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं तो क्या कर कुछ रहे हो कुछ रहा है, कर रहे हैं ब्रीदिंग और मन में कुछ और चल रहा है. वो मन इज वेरी ऑलवेज वेरी फिकल, मन बड़ा चंचल है. तो अपने को मन को वो प्रैक्टिस के साथ थोड़ा सा लगा उसको करना है. You have to involve the mind a little bit so that what happens is we get more benefit of the practice. ये तो ये क्या हो गया, ये एक्सरसाइज हो जाएगी. 1 2, तो हम लोग क्या गिन रहे हैं, गिनती कर रहे हैं. वी आर डूइंग नंबर, yeah, we are just involved in numbers, but we say, oh no, my chest is expanding, I am taking in more oxygen, मेरा इससे ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा, मेरी बॉडी अच्छी काम करेगी, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा काम करेगा. एंड व्हेन आई रिलीज, सारे शरीर की स्ट्रेस, टेंशन, वरी, एंजाइटी बाहर जा रही है, शरीर साफ हो रहा है, साफ सुथरा हो रहा है, सारी बीमारी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज बाहर जा रहा है. दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो सिंपल एक्सरसाइज, बट हम उसको अवेयरनेस के साथ जोड़ेंगे तो उसका जो असर है, उसका जो फायदा है
वो बहुत ज्यादा होगा, राइट? एंड दैट इज द यूर से पिक्चर फोटो लेना और सारी बातों का उसमें समावेश करना, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस, है ना? एक आम आदमी जो करे एंड अ प्रोफेशनल पर्सन हु इज डूइंग, व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस. द माइंड इज फुली इन्वॉल्वड, यू आर इन्वॉल्वड इन फोटोग्राफी, योर माइंड इज टोटली इन्वॉल्वड देयर, राइट? उसी तरह से हमको करना. चलिए एक बार और करते हैं एंड देन वील गो टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस. श्वास लीजिए. मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, मेरी सेहत बन रही है, मेरी सिस्टम अच्छी काम करेगी. और श्वास छोड़ते जाइए. मैं टॉक्सिन्स बाहर भेज रहा हूँ, सारी कठिनाइयां, टेंशन, स्ट्रेस बाहर जा रहा है. रिलैक्स. बढ़िया, एक्सीलेंट. राइट, वी गो टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस. मैं एक बार करके दिखाता हूँ एंड देन वी सी द स्लाइड. तो क्या है, we'll have a little flow of the system. तो हमने पहले क्या किया? Horizontal expansion. सर प्लीज, या ओके. ये कितनी बार करना है वैसे? मैं बताता हूँ. आई एम टेलिंग 5 से 7 बार किया तो काफी है. That is there in the slide. We'll explain. Thank you, sir. Keep all your questions at the last so that we don't. चलिए, जैसे मैंने कहा कि अपने lungs will expand in the vertical direction also. So ये डायफ्राम से लेके अपने कॉलर बोन तक, कंधों तक हम अपने सीने को खींच सकते हैं, हमारे फेफड़ों को, लंग्स को खींच सकते हैं. So that is what we will attempt to do. तो क्या करेंगे? कंधों के ऊपर हाथ रखेंगे, उंगलियां रखेंगे. श्वास लेते हुए कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कंधों को नीचे खींचना है. So when you breathe in, raise your shoulders, elbow up. When you breathe out, exhale, bring your hands down. श्वास, प्रश्वास, श्वास. ऑक्सीजन ले रहे हैं, सफाई कर रहे हैं शरीर की, मन की. रिलैक्स कर दीजिए और सारा ध्यान, सारा अवेयरनेस, आंखें बंद कीजिए. कीप योर अवेयरनेस. थोड़ा देखिए क्या हो रहा है अपने लंग्स में. 3, 4, 5 बार हमने स्ट्रेचिंग किया, लंग्स को स्ट्रेच किया ऊपर नीचे. देखिए थोड़ी सी एनर्जी हमारे लंग्स में बढ़ गई है. और एक प्रैक्टिस करते, तीसरी और आखिरी प्रैक्टिस लंग एक्सरसाइज वाली. और अब फिर हम उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस और वो कुछ टिप्पणियां भी देंगे. गिव यू द इंस्ट्रक्शंस एंड आल्सो द थिंग. क्या करना है? लंग्स आगे पीछे भी एक्सपैंड होते हैं. दे कैन एक्सपैंड इन द फ्रंट, राइट? ये पूरा रिब केज जो है आगे और पीछे एक्सपैंड होता है. तो क्या करना है इसमें? वी विल ब्रीथ इन, कंधों को रोटेट कीजिए, श्वास लीजिए, ढीला छोड़िए, प्रश्वास कीजिए. पूरी give a full rotation to your shoulders. Drop the shoulder. प्रश्वास करते समय श्वास, कंधे नीचे ढीले छोड़ेंगे और प्रश्वास करेंगे. श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे. Breathing as you go up. Breathe out as you come down. श्वास लेते हुए ऊपर, कंधे ऊपर खींचिए, कंधे ऊपर ढीला छोड़िए, हाथ ढीले छोड़ दीजिए, नीचे छोड़ दीजिए. एक बार और. श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए. वेरी गुड, थैंक यू. चलिए, लेट्स गेट टू द बैक टू द स्क्रीन. इसको समझ ले. अतुल जी बहुत बढ़िया. अच्छा, मैंने कहा 5-7 बार इसको करिए, ज्यादा मत कीजिए, राइट? हम लोग if we are not very we are not used to it. See, एक ही दिन में मैराथन नहीं भागना है. पहले थोड़ा सा देखना है, फिर ऑब्जर्व करना है, फिर धीरे धीरे 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, धीरे धीरे. एनीथिंग दैट यू डू इट इन अ फेज्ड मैनर. अपनी क्षमता थोड़ी सी बढ़ाइए, फिर आगे चलिए. ओके, सो ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, ये हो गया वर्टिकल एक्सपेंशन. एक बात आपको जस्ट थोड़ी बताने की,
श्वास प्रश्वास क्यों होता है? दैट इज हैपनिंग बिकॉज देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस दैट इज क्रिएटेड। या बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 760 है, 760, राइट? नंबर छोड़ दीजिए, इतना याद रखिए। और अंदर का प्रेशर कितना है? जब ओनली व्हेन योर लंग्स आर एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, तभी ये संभव है। हमारे रेगुलर ब्रीदिंग में हम बिल्कुल ही कंजूसी करते हैं। वी आर वेरी फिकल, वी आर वेरी कंजूस इन ब्रीदिंग डीपली, ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर मेनी ऑफ द एलिमेंट्स एंड इलनेसेस, राइट? यदि पूरा श्वास हम ले भरपूर, राइट, आप को बताना है कि जस्ट टू फॉर योर इंफॉर्मेशन 3600 क्यूबिक सेंटीमीटर या हम लोग श्वास ले सकते हैं, एक्सपेंशन हो सकता है। बहुत स्कोप है हमारे ब्रीदिंग को इंप्रूव करने के लिए, ओके। चलिए, वर्टिकल एक्सपेंशन, ऊपर नीचे, कंधों को ऊपर लिया, हाथ को ऊपर लिया, छोड़ा, राइट, दैट इज द वर्टिकल एक्सपेंशन। और रोटेशन किया, राइट, कंधों को घुमाया, ढीला छोड़ा, श्वास पर प्रश्वास कर दिया, राइट, दैट इज हाउ वी शुड डू इट। क्या फायदा होगा इसका? हमारे लंग्स को एक्सरसाइज मिला, हमने ज्यादा ऑक्सीजन ले लिया, राइट, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं, कोई पैसा लगना नहीं है, या हमारे नेचुरल वेंटिलेटर को हमने सक्षम रखा, तो देखिए कितना फायदा होगा। अभी वेंटिलेटर के ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, हम थोड़ा सा हमारा रिसर्च इस पे करें ना, डीप ब्रीदिंग पे, किस बात की वेंटिलेटर की आवश्यकता है आपको बताइए मुझे, राइट, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इज, एक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जाने लग गया, राइट, और वो सारे बीमारी की जड़ है, राइट। सो एक्सहेलेशन अच्छा हुआ, इनहेलेशन अच्छा हुआ, कोई बीमारी की आवश्यकता हमारे पास नहीं रहेगी, ओके। और एक बात और है कि हम जो भी करते हैं वो हमारे क्षमता के अनुसार करें, राइट। हम वहां पे लिखा है 5 बार करे, 7 बार करे, 10 बार करे, 10 से ज्यादा बार भी नहीं ना करे, राइट। तो क्या है, मुझे लगता है कि मैं 3 में ठीक हूँ, तो ठीक है, 3 बार करिए, 2 दिन के बाद 5 पे जाए, 4 पे जाइए, 5 पे जाइए, धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाइए। डोंट रश, कोई कंपटीशन नहीं, अपने को ओलंपिक्स में भाग लेना नहीं है, राइट। ओलंपिक्स 1 साल पोस्टपोन हो गया है, ठीक है, तो प्लीज रिलैक्स योरसेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा कठिन बात है, थोड़ा सा इससे फास्ट है, और थोड़ा इसको कहते हैं हम रैपिड ब्रीदिंग, ओके। तो रैपिड ब्रीदिंग में क्या है कि थोड़ा फोर्सफुली श्वास लेना, थोड़ा फोर्सफुली श्वास को छोड़ना है। क्या क्यों करना है इसको? क्योंकि हमको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा जोर से अपने सिस्टम में पहुंचाना है, और उसके बहुत सारे फायदे हैं, वो भी हम देख लेते हैं और फिर वो प्रैक्टिस करते हैं। उसका फायदा ये होता है, यदि हम रैपिड ब्रीदिंग करते हैं, जिसको योग में भस्त्रिका बोलते हैं, कि हमारी सारी, हमारा पूरे बदन का या एनर्जाइजेशन हो जाता है, पूरा वार्म अप होता है। आप 10 बार करेंगे ना इसको, 10 काउंट्स करेंगे, वो भी ऐसा लगता है कि अरे सीना अपना बड़ा ताकतवर है, बहुत सारी शक्ति है उसमें, राइट। आपका सर्कुलेशन एकदम इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, राइट, तो हार्ट बीट्स भी बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो हमारा सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और हमने वो नर्व सिस्टम के बारे में बात की थी, वी हैड स्पोकन अबाउट द न्यूरॉन्स, उसका ट्रैफिक ऑन न्यूरॉन्स, और वो नर्व का क्लेंसिंग हो जाता है, तो वो हमारा नर्व्स का जो पूरा नेटवर्क है उसकी भी सफाई होती है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी उसका सर्विसिंग हो गया, और नर्वस सिस्टम भी उसका सर्विसिंग हो जाता है, राइट। देखिए इतना सारा फायदा उसमें है। चलिए, तो इसको करते हैं, करके देखते हैं, रैपिड ब्रीदिंग और भस्त्रिका हम जिसको बोलते हैं। तो क्या करेंगे एक बार देखिए, राइट। मैं आपको इसको बैठ के भी हम कर सकते हैं, थोड़ा स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए, मैं अभी कर रहा हूं उसको, थोड़ा रैपिडली हमको करना है, थोड़ी जल्दी जल्दी श्वास लेना, जल्दी जल्दी श्वास उसको छोड़ना है। तो
10 बार किया, हमारे सीने की तरफ, हमारे प्रैक्टिस की तरफ फिर से हमारा ध्यान, हमारा मन, आंखें बंद, और थोड़ा हमारा मन को ले जाइए हमारे सीने की तरफ। देखिए क्या बदलाव हो गया वहां पे। व्हाट इज द डिफरेंस दैट इट हैज मेड इन जस्ट 10 रैपिड फायर ब्रीदिंग टेक्निक। एक बार और करते हैं। थोड़ी सी वर्ड ऑफ कॉशन सभी के लिए, जिनका कुछ सर्जरी हुआ हो या जिनका कोई हार्ट प्रॉब्लम या ऐसा हुआ हो, एंजियोग्राफी, बाईपास अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले हुआ, तो वो कैसे करेंगे? थोड़ा हल्का, हल्के से करें, राइट? अभी ऐसा करें तो उनको तकलीफ हो सकती है, तो थोड़ा अवॉइड करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें, राइट? और धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं। एक दूसरा राउंड करते, we'll do the second round of rapid fire, okay, rapid breathing। चलिए एक बार करते हैं। अब मैं अभी सेकेंड टाइम में थोड़ा 15 के आसपास जाता हूँ, ठीक है? आपको जरूरी नहीं 15 करना है, आपको शायद लगता है कि 8 में मैं ठीक हूँ, you stop at 8 and you can close your eyes and feel the change in the heart chest beat, okay? ठीक है। सेकेंड राउंड में थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं, थोड़ी काउंट बढ़ा सकते हैं, देखिए कैसे होता है। चलिए दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। आंखें बंद, ध्यान हमारा सीने की तरफ, और देखिए क्या बदलाव हो गया है। What is the change that has come with just this 10, 12, 15 rounds of inhalation, exhalation, rapid fire? Relax कर जाइए। सर और एक बार करते हैं, one more time, last time हम लोग करेंगे, right? Rapid fire, okay? Rapid breathing, भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका क्या होता है? देखिए वो कहाँ से आया भस्त्रिका का कॉन्सेप्ट? वो जो लोहार या सोनार होता है, देखिए वो अपने हाथ से, उसका एक भाता होता है, there is one you know leather kind, अभी तो वो सब चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, so we can sending through a pump या कैसे भी, right? तो क्या है, वो पाइप के थ्रू वो ये भेज रहा है, ऑक्सीजन भेज रहा है, कहाँ? तो जहाँ कोयले रखे हो या तो क्या होता है, वहां हीट हो जाती है ताकि वो मेटल पे वो काम कर सके। जब मेटल हीट होता है, देखें उसको ढाल सकते हैं। अभी हम लोग ज्वेलरी देखे, ये देखे, लोहार गोल्ड स्मिथ का बारे में देखे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ भस्त्रिका। हमको पंप करना है ऑक्सीजन थ्रू आवर ट्रैक, थ्रू आवर ट्रेकिया, राइट, इनटू द लंग्स, राइट? क्या होता है, क्या हो जाएगा? वो छोटे छोटे ब्लॉकेजेस है, छोटी छोटी कचरा है, वो किसी को अस्थमा है, किसी को कोई तकलीफ है, कोई ये हो गया, वो तुरंत निकल जाएगा भाई साहब, राइट? It will just energize yourself, और आप देखेंगे कि अरे यार ये तो क्या कमाल हो गया, मेरा ब्रीदिंग एकदम ठीक हो गया। कोई नाक में कोई पार्टिकल कहीं फंसा हो, ये हो, there are so many things inside our system, right? कोई ब्लॉकेजेस है, राइट? नॉट ओनली हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, अपने एयर पैसेज में भी ब्लॉकेज हो सकता है, वो भी निकल जाएगा। एक बार और करते हैं भस्त्रिका, राउंड नंबर 3, 15 के आसपास करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, बट आप कीजिए, you do it the way you feel comfortable, right? आपको ऐसा लगता है कि नहीं, I am comfortable with this speed and this count, तो वही है। चलिए एक बार करते हैं। शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी द चेंज, देखिए एकदम बदलाव हो गया मेरे सीने में, आपके सीने में, एक छोटा सा प्रैक्टिस करने के बाद। और जो हार्ट पेशेंट्स है, जिनका सर्जरी हुआ,
बहुत ध्यान रखिए, धीरे से कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। धन्यवाद। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस। वेरी सिंपल। तो 3 प्रैक्टिसेस हमने किए और विल गो टू द 4th प्रैक्टिस नाउ। और ये एकदम दिस इज अ मैजिकल प्रैक्टिस। ओके, जादुई है, वो एक प्रकार की मुद्रा है एंड वी विल शेयर दिस थिंग क्विकली विद यू। राइट, क्या करना है अपने को? व्हाट वी हैव टू डू इज, अभी तक हमने क्या किया? श्वास लिया, श्वास छोड़ा, बट अभी अपने को श्वास रोक करके रखना है। वी हैव टू होल्ड आवर ब्रेथ इनसाइड द लंग्स, जिसको हम प्राणायाम में कुंभक कहते हैं। क्या आप भी, वी ऑल डू इट। रिटेंशन ऑफ कस्टमर करते हैं ना, जो भी कस्टमर हमारा है उसको रोक कर, हमें वी आवर कस्टमर, राइट? वो तो आवश्यक है, राइट? किस कहाँ नए लोगों को ढूंढते रहेंगे, तो जिनके साथ अपना संपर्क है उनको हम लोग रिलेशनशिप बनाए रखें। तो हमको क्या करना है? ऑक्सीजन को सिर्फ श्वास में लेना नहीं है, उसको रोक करके भी रखना है। सो हाउ डू वी डू इट? कैसे करेंगे हम लोग? तो श्वास को लेना पहले, तो बाद में ये 2 उंगलियां हैं, एक तो अपना अंगूठा है, middle finger, thumb is there and the middle finger is there, and we will keep that pressed, right? तो दोनों को खूब जोर से, जितनी ताकत, जितनी क्षमता है उतना उसको दबा करके रखेंगे, और जितना देर संभव है, till such time we are comfortable, till such time we are we can hold, जितना देर रोक सकते हैं श्वास को हम अपने चेस्ट में, सीने में, लंग्स में रोक करके रखें। और आप देखो, ऐसा लगता है अभी कि नहीं अभी इसके बाद नहीं रोक सकते, हम 5 सेकंड रोक सकते हैं, 7, 8, 10 सेकंड, 15 सेकंड रोक सकते हैं, जितना हो सके उतना ही रोकिए। ओके, बाद में जब आपको ऐसा लगे कि नहीं हमको, आई थिंक आई शुड रिलीज द थिंग, तो आपको, यू डोंट हैव टू एक्सेल, यू जस्ट रिलीज दोस फिंगर्स। वो अपने उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए, अपने आप श्वास छूट जाएगा। ओके, सो आपने यहाँ सुना होगा कि आपने काफी सारे वीडियोस भी देखे होंगे, तो डॉक्टर साहब लोग कह रहे हैं, डॉक्टर्स आर टेलिंग कि इफ यू आर एबल टू होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड द लंग्स, यदि आपने श्वास अंदर रोक लिया लंग्स में, तो इसका मतलब आपको कोई कोरोना नहीं है, बराबर? तो 5-10 सेकंड यदि श्वास आप रोक सकते हैं, तो इसका मतलब आपके लंग्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोरोना बिल्कुल नहीं है। थोड़ी खांसी, सर्दी हो सके, थोड़ा बुखार हो, हाथ पैर दर्द दे रहा हो, वायरल हो सकता है, इट इज नॉट द सीवी, या कोविड नहीं है। सो सुंदर सिंपल टेस्ट है, राइट? अभी टेस्ट के लिए बहुत सारी बाहर लाइन लगी होगी, राइट? बहुत सारे मैसेज ये आ रहे हैं, बट ये सिंपल टेस्ट आप करके देख लीजिए। यदि इफ यू आर एबल टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम इन योर लंग्स, देन योर लंग्स आर फाइन। ओके, राइट? मैं आई एम नॉट टेलिंग कि ये दिस इज अ मेडिकल टेस्ट, बट दिस इज योर पर्सनल कॉन्फिडेंस, है ना? चलो एक बार आप इसको बात करके मैं दिखाता हूँ, फिर हम लोग सब करेंगे। चलिए एक बार देखिए इसको कैसे करना है। श्वास लेंगे अपने सीने में, श्वास भरेंगे सीने में, जितना हो सके उतना हमने श्वास लिया, फिर हमने अंगूठा और बीच की उंगली, आई हैव टेकन द मिडिल फिंगर एंड थंब, दोनों हाथों के, और इसको दबा के रखना। आई एम प्रेसिंग द थंब एंड द मिडिल फिंगर, इसका मतलब मैंने अपने श्वास जो लिया है उसको रोक करके रखा लंग्स। I am holding the breath. This is the mudra. This is the locking mechanism of oxygen into the lungs. 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो, शायद हो सकता है अभी मुझे छोड़ने की इच्छा हो रही, इससे ज्यादा मैं नहीं रोक सकता हूँ, तो मुझे प्रश्वास करने की, I don't have to exhale, उंगलियों को थोड़ा सा मैं ढीला छोड़ रहा हूँ, अपने आप श्वास बाहर निकल जाएगा। या ये जैसे आपने लॉक किया,
ये उंगलियों को छोड़ा, ये आपके रिमोट के जैसा है, या समझने वालों को इशारा काफी है। लंग्स को मालूम हो गया, चलो इन्होंने बता दिया, अभी अपने छुट्टी हो गई अपनी। चलो ठीक है, एक बार फिर से करके मैं दिखाता हूँ एक बार, एंड देन वी कैन ऑल डू इट टुगेदर। श्वास लेना है, टेक अ डीप ब्रेथ, जितना हो सके भरपूर श्वास लीजिए। अब इसको लॉक कीजिए, ऑक्सीजन को लॉक कीजिए अपने लंग्स में, दबा करके रखिए, खूब जोर से दबाइए, ऐसे ढीले मत दबाइए ताकि फिर वो कोई फायदा नहीं होगा उसका। खूब दबाइए, जोर से दबाइए, पूरी ताकत लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो हम सोचते हैं कि अभी नहीं, छोड़ देना चाहिए, तो उंगलियों को ढीला करिए, अपने आप श्वास हो गया, ऑटोमेटिकली एक्सहेलेशन हैज हैपेंड। चलिए एक बार और करते हैं, we'll do one more time and then इसको भी समझ लेते हैं कि क्या करना है। श्वास लेना है, ये हमारे लंग्स का टेस्ट है। जितना हो सके यथासंभव, यथाशक्ति, पूरी ताकत लगा करके हम रोकेंगे श्वास को जितना देर हो सके। जरूरी नहीं 8 में रखे, आप 6 में भी छोड़ दीजिए, 10 हो 20 हो, अपनी क्षमता के अनुसार रोक के रखिए। Hold the breath in the lungs through the locked fingers. Press the fingers tightly. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो छोड़ते हैं, let's release। ऑटोमेटिकली उंगलियों को ढीला छोड़ा, प्रश्वास अपने आप हो गया। राइट, बहुत बढ़िया, राइट, एक्सीलेंट। सो हमने 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करे, राइट। वी हैव डन 3 एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेच द लंग्स, देन वी डिड द रैपिड फायर, वी डिड द रैपिड ब्रीदिंग, एंड द थर्ड इज द होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ। तो 3 4 और 5, ये 5 एक्सरसाइजेस, इसको आपको 10 मिनट आप दे सकते हैं। अभी ये मत बोलिए कि मेरे पास समय नहीं है, राइट। सारे के पास समय ही समय है, राइट। सबके साथ कीजिए इसको, एंड जस्ट गेट द बेनिफिट। अपने नेचुरल वेंटिलेटर को कीप इट इन गुड कंडीशन। एक और छोटी सी बात I would share with you, suggest to you कि भरपूर विटामिन सी और विटामिन डी का आप सेवन कीजिए, राइट। टेक एम्पल अमाउंट ऑफ विटामिन सी, बिल्कुल अवेलेबल है, नींबू मिल रहा है, आंवला मिल रहा है, राइट। और अब ये तो लाना पड़ता है। विटामिन डी तो हमारे पास बिल्कुल भरपूर मात्रा में है, या सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, राइट। आप अपना दर्शन सूर्य भगवान को दीजिए, राइट। बालकनी में हो, चाहे कहीं पे जहाँ पे धूप आती हो, जिस भी बेडरूम में या अपना लिविंग रूम में जहाँ धूप आती है, राइट, वहां उस विटामिन डी को आप रिसीव कीजिए, राइट। नॉट आपने बस चलो किसी ने बताया 10 मिनट धूप में बैठो तो बैठ गए और व्हाट्सएप देख रहे, उससे फायदा नहीं होगा। ओके, आप जब धूप में बैठे तो एक काम कीजिए, whenever you do anything, आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, फोटोग्राफी कीजिए, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग, आप खाना खा रहे हैं, खाना खाइए, टीवी देख रहे हैं, टीवी देखिए, राइट। डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम, और पूरी कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। सो सूर्य भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करके वो भाव होना चाहिए कि भगवान मुझे इस विटामिन डी से yeah, when body produces vitamin D when it is exposed to sunlight, right? तो आप इसका think, और अपने शास्त्रों में लिखा है, our scriptures say that सूर्य भगवान से क्या मांगना, सूर्य भगवान से आरोग्य हमने मांगना चाहिए। We should seek health from the sun, आरोग्यम भास्करात् इच्छेत्। सूर्य भगवान से हम सेहत मांगे, बहुत आवश्यक है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए, राइट। सबके लिए सेहत मांगिए, और खुद यू बी, तो चैरिटी बिगिंस विद सेल्फ, राइट। तो आप रखिए,
और सो सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा आपको वीडियो मैं आई क्लिप शेयर दिस क्लिप विद सुनील जी। तो इन्होंने वही बताया, ये शिवा है, डॉक्टर शिवा, एंड ही हैज बीन सेइंग कि आप क्यों ये वो सारे टेस्ट और वैक्सीन और इधर उधर फार्मा में रिसर्च कर रहे हैं। आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, विटामिन सी विटामिन डी का भरपूर सेवन कीजिए। आपकी सेहत यदि अच्छी है तो कोई वायरस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और I would be happy if you can write the session feedback on your chat box. आपके chat box में जाइए और यदि आपको लगा कि वो सेशन बहुत अच्छा था, it was 80% to your expectation, you write 5 in the session. अच्छा था 70 से 80% if it was to your expected, आपकी अपेक्षा अनुसार इतना था तो 4 लिखिए, या जो भी आपको, बिल्कुल कोई इसमें कोई ये नहीं है, यू राइट योर ऑनेस्ट फीडबैक जो आप लिखिए। और कोई प्रश्न हो तो जरूर आपके चैट बॉक्स में लिखिए। मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर टेल यू एनी क्वेश्चन दैट यू हैव गॉट। एक क्वेश्चन प्लीज सर। यस, जैसे कि आप जानते हो कि जो जितने भी मेंबर्स है वो सब फोटोग्राफर हाँ फैमिली, वीडियोग्राफर फैमिली है, जो आए दिन फंक्शन में जाते हाँ हैं, जी। बाहर खाते हैं, तो वो सबके ज्यादा करके पेट बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने जितने भी आसन सिखाए ना वो सब यूजफुल थे, बहुत बेनिफिशियल वाले हाँ जी, थे, हाँ जी। मगर कोई योगा